All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture, we have completed GDSS, that is Group Decision Support System, right? Now today, within Unit 3, we will see ESS, that is Executive Support System. Again, I repeat, first of all, within this lecture, we will see another information system, which is ESS, that is Executive Support System. All right, as the name says, this information system will be useful to the executives, right? And who are executives? Obviously, they are top level executives के जिन्हें strategic decisions लेने की जरूरत पड़ती है, right? Again, I repeat, executives मतलब हमें यहाँ पे top level executives को consider करना है कि जिन्हें strategic decisions लेने की जरूरत पड़ती है, right? एंड ऑब्वियसली इसीलिए बहुत सारी कंपनीज ने एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करवाया है, राइट? एंड दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करती है ताकि वो लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सके, राइट? Now students, you have already studied within organization behavior subject what is strategic planning. हम strategic planning को इस हिसाब से define कर सकते हैं that strategic planning मतलब ऐसा planning कि जिसके अंदर हम long term objectives को determine करेंगे, right? उसके बाद हमारी कंपनी की weakness and strength को analyze करेंगे, right? Future trends को predict करेंगे, and along with that we will also see the development of the new products, right? We will also see the development of the new products within our company. Means new product के development related जो planning करने की जरूरत है वो भी strategic planning में include होता है, right? So students, strategic planning के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें include करनी है, right? फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हम डिटरमाइन करेंगे, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को भी एनालाइज करेंगे, राइट? फ्यूचर ट्रेंड्स को भी प्रिडिक्ट करेंगे, एंड अलोंग विद दैट हम अगर हमें कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करनी है उसके रिलेटेड कोई मतलब प्लानिंग करना है, दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूड विद इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर वो लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो उसके रिलेटेड जो डिसीजन लेंगे दोज डिसीजन विल बी नोन एज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। और ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, असिस्ट करेगी to the top level executives is known as executive support system, that is ESS, right? Okay, means we can say कि ESS एक ऐसी specialized decision support system है, right? कि जो जिसके अंदर obviously सारे components तो आएंगे ही, that is hardware, software, data, procedure, people, right? और ये जो ESS है वो senior level executives को assist करेगी ताकि वो लोग decision ले सके, and this ESS is also known as EIS, that is Executive Information System. Again, I repeat, ESS is also known as EIS, that is Executive Information System. और ये EIS हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, राइट, उन्हें सपोर्ट करेगा, right? So students, this is the diagram which you have already studied in the subject, that is organization behavior, right? कि अगर हम executive decision making की बात करते हैं तो ये executive decision making कौन कौन से level पर होगा? Obviously board of directors तो लेंगे ही, प्रेसिडेंट होंगे वो भी लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो भी लेंगे, एंड अलोंग विद दैट जो भी फंक्शनल एरियाज के मैनेजर्स होंगे वो भी ये डिसीजन लेंगे, right? That is executive decision making. So these are the 4 different layers के जहां पे executive decisions लिया जाता है, right? Okay, now this ESS
can also be used by individuals in the organizational structure. जैसे हमने DSS में देखा था कि अगर हम DSS की बात करें तो वो इंडिविजुअल यूजर्स को असिस्ट करता है, लेकिन अगर हमें ग्रुप में डिसीजन लेना है, राइट, तो वहां पे हमें DSS काम नहीं लगेगा, वहां पे हमें GDSS काम लगेगा, दैट इज ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बट ये एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होंगे वो ग्रुप में भी असिस्ट करेगा एंड अलोंग विद दैट इंडिविजुअल पर्सन को भी असिस्ट करेगा, राइट। एंड अगर हम स्टूडेंट्स, अभी तो हमने बात की दैट इज ESS, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल व्यू की बात करें तो ESS क्या करता है, जो भी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स है, राइट, उन्हें ऐसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ट्रैक करने में काम लगता है, दैट इज ट्रैक करने में हेल्प करता है, राइट, कि जिसके ऊपर से वो लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सके, राइट। नाउ एज यूजुअल, जैसे हमने सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, सो ESS की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ESS। फर्स्ट इज टेलर्ड टू इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव्स, राइट। जिस हिसाब से इंडिविजुअल को डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, अकॉर्डिंग टू दैट ये ESS फोकस करता है, राइट। उसके बाद डेटा को फिल्टर करता है और उसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके देता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ESS इज एन इंटरैक्टिव सिस्टम। इंटरैक्टिव सिस्टम मतलब जिस हिसाब से जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को डिसीजन लेने की जरूरत है, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट वो डेटा को फोकस करता है, उसे फिल्टर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और इस हिसाब से वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को वो देता है, right? So that is the first characteristics of ESS. Now second characteristic is obviously easy to use, right? स्टूडेंट्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, राइट, तो उन्हें टाइम टू टाइम डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ती है एंड दैट डिसीजंस आर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। सो अगर हम हमारी ESS को इस हिसाब से डेवलप करते हैं कि उसे ESS को समझने में ही टाइम लग जाए, उसे पता ही ना चले कि ये ESS को यूज कैसे करना है, तो ऑब्वियसली उनका सारा टाइम ये सारी चीजें समझने में चला जाएगा। बट वी हैव टू डेवलप अवर ESS सिस्टम कि जो अच्छी तरह से समझ में आ सके एंड इट इज ऑल्सो इजी टू यूज, राइट। हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बनाना है, right? That is the second characteristics of ESS, that is easy to use. Third is it has drill down capability. ये तो MIS में भी था, DSS में भी था, right? Drill down capability मतलब हमने already देखा है कि पहले abstract information होती है, उसके बाद उसे थोड़ा डिटेल लेवल में हम उसे डिटरमाइन करते हैं, बाइफरगेट करते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसे मोर डिटेल लेवल में बाइफरगेट करके देते हैं। इन शॉर्ट, डिटेल्ड मैनर में सारी इंफॉर्मेशन हम ESS थ्रू एग्जीक्यूटिव्स को दे सकते हैं, राइट। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पहले तो ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज, फॉर एग्जांपल कोई डेटा लेते हैं तो पहले सिर्फ कैटेगरी डिस्प्ले होती है, उसके बाद पर्टिकुलर कैटेगरी के रिलेटेड मोर डिटेल लेवल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वही पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करके हम उसकी मोर डिटेल लेवल में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बिकॉज अगर हम सारी कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन दे देंगे देन ऑब्वियसली अगेन इट विल क्रिएट हॉच पॉच, राइट, बिकॉज सब मैशअप हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा एंड एग्जीक्यूटिव्स विल नॉट एबल टू इजीली टेक डिसीजंस। सो जब जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जितनी डिटेल लेवल में इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, ये ESS वो कैपेबिलिटी है उसके पास, that it will give drill down, it has a drill down capability, मतलब abstract level, after that detail level and after that more detail level, इस हिसाब से वो information display करेगा, right? Now another characteristics of ESS is obviously it supports the needs for external data. वो तो MIS में भी था कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सारे होते हैं, इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं एंड ऑब्वियसली अगर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को डिसीजन लेना है तो उन्हें एक्सटर्नल डेटा भी यूज करना पड़ेगा, मीन्स द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज,
राइट। सो ESS ये भी सपोर्ट करता है, मीन्स ESS ऑल्सो सपोर्ट द नीड फॉर एक्सटर्नल डेटा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सप्लायर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज अगर हमें ऐसा डिसीजन लेने की जरूरत है कि अगर हमें कोई हमारे सप्लायर को हमारा पार्टनर बनाना है तो हम कौन से सप्लायर को हमारा पार्टनर बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड सप्लायर की इंफॉर्मेशन चाहिए, and it is also collected from external sources, right? Next is can help with a situation that have a high degree of uncertainty. For example, exceptional situation अगर हमारे organization में raise होती है तो वो particular situation को handle करने के लिए जो भी decisions लेने की जरूरत है, right, उसमें भी ये ESS help करेगा, right? सो इन शॉर्ट वी कैन से एक्सेप्शनल सिचुएशन हम उसे कह सकते हैं, अननोन सिचुएशन हम उसे कह सकते हैं कि जो मतलब सडनली अराइज हो चुकी है, राइट, वो रेगुलरली अराइज नहीं होती है, सडनली अराइज हो चुकी है, और ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेने में ये ESS हेल्प करेगा, राइट। अनदर इज हैव फ्यूचर ओरिएंटेशन। फ्यूचर ओरिएंटेशन मतलब ऑब्वियसली अगर हम हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बात करें, राइट, एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, तो वो डेली रूटीन के जो डिसीजंस है उसमें इतना वो लोग फोकस नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन दैट टास्क टू अनदर मैनेजर्स, राइट। लेकिन अगर हमें फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन लेने की जरूरत है, राइट, बिकॉज हमने पहले ही देखा कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर वर्क करते हैं, मीन्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि जो डिकेड्स तक चले, अगर हम कोई डिसीजन लेंगे तो उसका इम्पैक्ट डिकेड्स तक लगेगा, डिकेड्स तक उसका इम्पैक्ट चलेगा, राइट, दैट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। इट मीन्स ऐसे डिसीजंस के जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकता है, राइट, ऐसे डिसीजंस लेने में ESS हेल्प करता है टू द एग्जीक्यूटिव्स। नाउ अनदर इज आर लिंक्ड विद वैल्यू एडेड बिजनेस प्रोसेसेस। नाउ व्हाट इज वैल्यू एडेड प्रोसेसेस? स्टूडेंट्स, अगर हम हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हम गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट, अगर हमें उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है, राइट, अगेन आई रिपीट, अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारी कंपनी की गुड्स है, सर्विसेज है, अगर हम उसकी वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें उस हिसाब से ESS के साथ डील करना पड़ेगा, राइट। जो भी सब सिस्टम्स है ESS की, उसके अंदर हमें स्पेसिफिक इनपुट देने पड़ेंगे, राइट, ताकि जो भी वो हमें आउटपुट दे जिसके ऊपर से हम डिसीजन ले सके, वो डिसीजन ऐसा हो कि हमारे कंपनी की गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो, राइट। Now value added processes obviously increase the relative worth, right? किसके रिलेटेड वर्थ इंक्रीज करेगा? ऑब्वियसली वी हैव टू कंबाइन इनपुट, राइट, एंड आफ्टर दैट फाइनल आउटपुट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड क्यों हम ये सारी चीजें करेंगे? ऑब्वियसली टू अचीव द गोल्स, राइट। जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, जो भी सिचुएशंस अराइज होते हैं, उसके रिलेटेड हमें वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है कि जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करे। और अगर हम हमारे सर्विसेज और हम हमारे बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब उसे ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, राइट, देन ऑल्सो इट विल बी हेल्पफुल टू अवर ऑर्गेनाइजेशन। और ये वैल्यू एडेड बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर भी ESS हेल्प करता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव करने हैं, राइट, इफेक्टिव डिसीजंस लेने हैं, तो हमें ये ESS का यूज करना चाहिए ताकि हम वैल्यू एडेड बिजनेस प्रोसेसेस को हम डिटरमाइन कर सके, उस हिसाब से हमारे बिजनेस प्रोसेसेस को अरेंज कर सके, ऑपरेट कर सके कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, these are the functions of managers जो अगेन आपने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट में पढ़ा है, that is planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling, राइट। सो ये मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी आप OB में पढ़ चुके हो,
राइट। लेकिन मैंने ये यहाँ पे क्यों लिस्ट आउट किया है? बिकॉज capabilities of ESS is related to all these functions. Again, I repeat, capabilities of ESS है, it is related to all these functions, right? इसीलिए मैंने यहाँ पे ये functions वहाँ पे list out किया था, right? Now students, ये जो top level executives होते हैं, उनकी main responsibility क्या होती है? डिसीशंस लेने होते हैं, राइट? ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशंस के जो हमेशा अकर नहीं करती है, राइट? कभी कभी अकर करती है ना। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स डिसीजन लेते हैं, राइट? सो अगर हम कैपेबिलिटीज ऑफ ईएसएस की बात करें तो उसकी 5 डिफरेंट कैपेबिलिटीज है। कौन कौन सी है? ऑब्वियसली पहला तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को वो सपोर्ट करेगा, राइट? अगर वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को सपोर्ट करता है, इट मीन्स कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में हेल्प करेगा। दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द ईएसएस। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स देखे, उसके अंदर प्लानिंग था, सी ओवर हियर। उसके अंदर क्या था? प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग था, कंट्रोल था, राइट? ओवरऑल विजन को डिफाइन करना है, राइट? एंड अगर कोई शॉर्टेज होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्राइसिस होते हैं, राइट? तो वो सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी इस ईएसएस हमें हेल्प करता है। दैट्स व्हाई कैपेबिलिटीज ऑफ ईएसएस हमने किसके ऊपर से डिफाइन किया है? वी हैव डिफाइंड कैपेबिलिटीज ऑफ ईएसएस रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ द मैनेजर्स। बिकॉज जो भी मैनेजर्स के फंक्शंस होते हैं उसके रिलेटेड ही ये ईएसएस हेल्प करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 5 कैपेबिलिटीज यहाँ पे लिस्ट आउट की है, विच इज टोटली सिमिलर टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स, राइट? कि अगर यहाँ पे सिंपल प्लानिंग है, लेकिन अगर हम एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो हमने पहली स्लाइड के ऊपर ही डिस्कस किया कि उन्हें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है, राइट? नाउ अगर वो लोग टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स है तो उन्हें पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल विजन डिफाइन करने की जरूरत है कि फॉर एग्जांपल आफ्टर 10 इयर्स, राइट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे होगी। दैट इज द ओवरऑल विजन ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे सारे जो भी एक्टिविटीज टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज में ईएसएस उन्हें हेल्प करता है। इसीलिए इट इज डिफाइंड विद इन द कैपेबिलिटीज ऑफ ईएसएस, right? So students, over here we have completed the topic that is ESS, right? That is Executive Support System. जैसे हमने बाकी सारी information system के अंदर characteristics, capabilities, वो particular information system कहाँ पे help करेगी, किसे help करेगी, वो सारी चीजें हमने discuss की थी। वैसे ही हमने ESS के अंदर वही सारे points discuss किए। And with the completion of this topic, that is ESS, we have also completed our unit number 3. Again, I repeat, over here we have completed unit number 3 of the syllabus of the subject that is 401 information systems, right?